उनका। आज कुछ और बिजनेस रूल्स देखेंगे। हाँ भाई। आज वो बंदा नहीं आ रहा है क्या? नहीं यार, ये एक दो दिन में क्या हो जाएगा यार। वो स्टार्ट भी बिजनेस रूल से करवा रहे हो। In position management settings, we have something called as synchronization tab. So in synchronization, we discussed about position to भाई job sync. मेरा एक क्वेश्चन था। Huh. हम्म, So position to job sync and job to position sync. So we already discussed about this earlier. So I've told you that whenever we are hiring an employee, or in case if you want to change a position of an employee, let's say एक employee है, whenever you are hiring an employee, the first thing that you will create is a position. So when you create a position, you will have to maintain lot of details on the position. The same position, when you assign it to an employee, the details that you maintain on the position will be copied to the see. Now let's see this. Position information is empty. Because of that, org information is also blank, job information, time information, everything is blank. Okay, so if you want to hire an employee, the first thing that you have to do is you have to create a position. So once your position is ready, then you can assign that particular position to the employee. Okay, let's create a position now. So there are different ways you can create a position. One is through, most of the times, 99% of the times, the companies will give access to org chat. Okay, most of the HRs will create a new position only through org chats. Okay, this is the org chart. This is the reporting structure. Then we have the position org structure. Using the position org structure, we create the positions. So if you want to create a new position under this, you can click on this one. Okay, यहाँ पे if you click on this one, you'll have add lower level position. This is one option. It means this will be reporting position of a new position. Add peer position. It means they both will be at the same level. कॉपी पोजीशन बोलो तो सेम पोजीशन, सेम डिटेल्स जो भी है, यही डिटेल्स आपको अगर कॉपी करना है तो देन यू कैन यूज कॉपी पोजीशन, और यू कैन इवन create a new position by, this is the one, clicking on this one, add position. So when you click on add position, it will let you fill all the details. Code is auto generated, that's why you will not see this field in editable mode. You can give a start date, then you can select a change reason. Why are you creating this position? Next you can select any of the job code. In this way you will select all the different fields. Okay, ये पूरा कंपनी स्ट्रक्चर हो गया, कंपनी, हेड ऑफिस, ब्रांच, ऐसे हम पूरे डिटेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, once this is ready, once your position is created, just save it. Related position is mandatory. Let's give some random position here. So your position is ready. As soon as you save, a new code will get generated automatically from the sequence. इसको हम कॉपी करके हमें अभी एम्प्लॉय के
जॉब इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे पोजीशन इन्फॉर्मेशन, ओके, और यू कैन असाइन इट फ्रॉम हियर और you can even go to actions, click on action, and then okay, I think you don't have access to this one, job information। यहाँ पे 1st of March से यहाँ पे पोजीशन ब्लैंक है, यहाँ पे मैं पोजीशन का नंबर डाल रहा हूँ। दूसरा एम्प्लॉय लेंगे, जस्ट होल्ड ऑन यार, कॉल आ रहा है। ओके सॉरी, ओके, सो आई एम सेलेक्टिंग जॉब इन्फॉर्मेशन क्योंकि मुझे जॉब इन्फॉर्मेशन पे चेंजेस करना है, क्योंकि मुझे जॉब इन्फॉर्मेशन पे एक पोजीशन असाइन करना है। तो आई हैव सेलेक्टेड जॉब इन्फॉर्मेशन एंड देन आई हैव सेलेक्टेड अ डेट, इफेक्टिव डेट। यहाँ पे मैं वो नया पोजीशन दे दूँगा। ये नहीं आ रहा है, 1321, इसका बेस्ट रन 4000 है। Let's see why this is not here. FT is 1 to be recruited no है। देखो इसकी वजह से ये पोजीशन मुझे ढूंढने नहीं दे रहा है। So what we'll do is we'll copy this position ID, search for this position, then मैं इसको एडिट करूँगा अभी। एडिट 1st of March से टू बी रिक्रूटेड, यस बना रहा हूँ, सेव। ओके, सो माय पोजीशन इज रेडी। लेट्स ट्राई टू assign this once again। अभी दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पे वो नया पोजीशन को असाइन कर दो। तो as soon as I assign it, प्रीवियस वैल्यूज़ पूरा स्ट्राइक आउट हो जाएंगे और जो भी मैंने नया पोजीशन पे मेंटेन किया है वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो, ये लोड हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज the rules related to position to job sync will be triggered whenever you are changing the position. How does the system know that it should trigger a business rule when it is when the position is getting changed? That is because manage business configuration में position change पे, position field change पे हमने position to job sync वाला rule assign किया है। Let's see that। ओके, मैं यहाँ पे जॉब इन्फो पे आ रहा हूँ क्योंकि पोजीशन जॉब इन्फो के पोर्टलेट पे है और यहाँ पे पोजीशन का फील्ड है। तो व्हेन एवर आई एम चेंजिंग द पोजीशन, वो बिजनेस रूल ट्रिगर हो रहा है। हाउ इज इट गेटिंग ट्रिगर्ड? बिकॉज आई असाइंड द जॉब सिंक पोजीशन टू जॉब सिंक रूल एट द
पोजीशन फील्ड लेवल। यहाँ पे देखो पोजीशन टू जॉब प्रोपगेशन, प्रोपगेशन बोलो तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को वो डिफ़ॉल्ट होगा। तो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बॉक्स व्यू रूल, इट विल ओपन द बिजनेस रूल। तो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस बिजनेस रूल। ये जॉब इन्फो बेस ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जॉब इन्फॉर्मेशन डॉट पोजिशन इज नॉट इक्वल टू नल। अगर पोजीशन का वैल्यू जॉब इन्फॉर्मेशन पे नल नहीं है बोले तो अगर कुछ भी वैल्यू है जॉब इन्फॉर्मेशन पोजीशन पे, देन ऑल दिस शुड हैपन। व्हाट शुड हैपन? जॉब इन्फॉर्मेशन डॉट लोकेशन शुड बी इक्वल टू जॉब इन्फॉर्मेशन डॉट पोजीशन डॉट लोकेशन। इट मीन्स जॉब इन्फॉर्मेशन पे और पोजीशन पे सेम फील्ड्स रहेंगे, लोकेशन है ओके यहाँ पे भी लोकेशन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिवीजन, बिजनेस यूनिट, कंपनी ये सब है, यहाँ पे भी कंपनी, डिवीजन, डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, ये सब वैल्यूज़ है। तो जब मैं पोजीशन पे ये वैल्यूज़ मेंटेन कर रहा हूँ तो सेम डिटेल्स जॉब इन्फो पे भी कॉपी हो जाना चाहिए। तो हाउ शुड दे गेट कॉपीड? That is through this business rule, position to job propagation. So when you put this rule on change, whenever you are changing the position, जो भी details position पे maintained है वही details यहाँ पे पूरा copy paste हो जाएगा, okay? default हो जाएंगे। That is through business rule. ये business rule में job information पे जो location है यहाँ पे, this value should become whatever is maintained on this position, okay? तो job information dot position dot location, the same thing is here. job information dot location is equal to job information में जो position है, position का location यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। next business unit, जॉब इन्फॉर्मेशन का पोजीशन पे जो भी बिजनेस यूनिट है वो आके जॉब इन्फॉर्मेशन पे जो फील्ड है उस पे बैठना है। सो यू कैन जस्ट रीड दिस वन। पोजीशन पे जो ब्रांच है वो जाके डिवीजन है जो वो जाके जॉब इन्फॉर्मेशन डिवीजन में बैठना है। पोजीशन डॉट डिपार्टमेंट में जो वैल्यू है वही जाके जॉब इन्फॉर्मेशन डॉट डिपार्टमेंट में बैठना है। तो ऐसे हम जितने भी फील्ड्स हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो सब फील्ड्स पोजीशन से कॉपी होके यहाँ पे जॉब इन्फॉर्मेशन में पेस्ट हो जाएंगे कम्प्लीटली। सो यहाँ पे देखो ये दिस इज़ द ओल्ड पोजीशन एंड दिस इज़ द न्यू पोजीशन। व्हेन एवर यू चेंज सम वैल्यू यू विल सी द प्रीवियस वैल्यू स्ट्राइक्ड आउट। ओके ये देखो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। By looking at these field values, by looking at the striked out values, you can understand that all these fields got changed. ये देखो जॉब क्लासिफिकेशन भी चेंज हो गया, शायद मैनेजर असाइन नहीं है ठीक से तो इसीलिए नो मैनेजर बोल के दिख रहा है। इसका जॉब टाइटल भी चेंज हो गया, पे ग्रेड चेंज हो गया। ओके इन दिस वे यू कैन assign new positions onto the job information, or even if you want to hire a new employee you can still do the same thing. job information में आके वो position को हमें assign करना पड़ेगा। यहाँ पे already assigned position था previously इसीलिए striked out values दिख रहा है। बट अगर आप सेम चीज़ एक existing employee को नहीं एक नया एम्प्लॉय आर न्यू एम्प्लॉय पे या हायरिंग के स्क्रीन पे असाइन करोगे तो ये स्ट्राइक्ड आउट वैल्यूज़ नहीं दिखेगा क्योंकि प्रीवियस वैल्यूज़ कुछ है ही नहीं। तो नाउ आई हैव सेव्ड दिस चेंजेस। तो वो चेंजेस देखने के लिए लेट्स गो टू एम्प्लॉयमेंट। यहाँ आके देखेंगे तो यू कैन क्लिक ऑन दिस हिस्ट्री बटन, ओके ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन हिस्ट्री। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन इट विल शो यू व्हेन द चेंज हैज़ हैपेंड। 10th ऑफ मार्च को हमने ये चेंजेस किया है इफेक्टिव एंड इसका पोजीशन चेंज हो गया है। इसका पोजीशन एंट्री डेट 10th ऑफ मार्च हमने मेंटेन किया है। सो 10th ऑफ मार्च से आज तक 20 डेज है। टाइम इन पोजीशन दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फील्ड, इट विल ऑटोमेटिकली गेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन।
नेक्स्ट वी हैव चेंज दी बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, लोकेशन, इतने सारे डिटेल्स हमने चेंज कर दिया है. वो सब डिटेल्स यहाँ पे फिर से स्ट्राइक डॉट वैल्यूज दिखेगा. ओके अगर यहाँ पे नहीं देखना है तो दिस इज़ वेयर यू नॉर्मली सी ऑल द रिकॉर्ड्स. इसका हायरिंग कब हुआ है? 9th of March 2015 को हुआ है. फिर कुछ और एडजस्टमेंट बोल के कुछ चेंजेस हुआ है. ओके एंड देन आफ्टर दिस यू हैव चेंज समथिंग ऑन 10th of March 2021. Okay, so this is how the position to job sync rule works. This is one thing. Okay, now what did you do? You actually assigned a new position to the employee. But let's say आपको असाइन नहीं करना है, पोजीशन पे जो आप चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाना चाहिए. ओके लेट्स से यू वांटेड टू चेंज द लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय. सो अगर आप पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग्स और पोजीशन मैनेजमेंट फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हो आपके क्लाइंट के लिए, देन you have to make the changes on the position and the same changes have to be synced back to the job information. Normally we don't change anything on the job information when you are using position management or position management settings. So अगर आपको इसका लोकेशन, एम्प्लॉय का लोकेशन क्या है, AAMMD 8500, you want to change this location. So how do you change this location details? Come to the position and then click on edit. Okay, 30th से मुझे इसका एम्प्लॉय का लोकेशन चेंज करना है. तो एम्प्लॉय का लोकेशन चेंज करने के लिए मुझे पोजीशन में जाके, ये पोजीशन में जाके चेंजेस करना है, क्योंकि पोजीशन और जॉब शुड ऑलवेज बी इन सिंक. You cannot have different values on position and job. तो जो भी आप changes position पे करोगे, because of the rule on the synchronization tab, position to job propagation, all the changes that you do on the position will be synced to the job, so that both position and job are in sync. Now let's say I want to change the location. मुझे location Amsterdam select करना है, save कर दिया मैंने. It is asking, do you want to synchronize the position data as of बोल के पूछ रही है ये. ओके दिस इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग. यहाँ पे पोजीशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़र डिसीजन इफ रिक्वायर्ड बोल के हमने ये सेलेक्ट किया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूछ रही है सिंक होना चाहिए कि नहीं बोल के. यस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा. यहाँ पे अभी क्या है, 10th मार्च से है ना. नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस चेंज फ्रॉम 30th of March. तो 30th of March को एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा एम्प्लॉय पे विथ ओनली लोकेशन चेंज. सो इफ आई क्लिक ऑन यस, यहाँ पे अभी लोकेशन एम्स्टर्डम हो गया है. और यहाँ पे एम्प्लॉय पे अभी देखो, दिस इज़ द लेटेस्ट रिकॉर्ड 10th मार्च का. मैं एक बार रिफ़्रेश करूँगा और फिर से ओपन करूँगा. ये देखो 30th of March को नया लोकेशन चेंज हो गया है. लोकेशन क्या है, AAMMD से एम्स्टर्डम को चेंज हो गया है. और इसकी वजह से, ये लोकेशन की वजह से, ये टाइम जोन भी, तुम्हारा जो भी टाइम जोन है वो भी अपडेट हो गया है. बिकॉज location is directly dependent on the, or time zone is directly dependent on the location. Now let's say आपने यहाँ पे आके ये चेंज करने के बाद इमीडिएटली वो पॉपअप मैसेज आया है कि should I synchronize these changes from position to job. Let's say you don't want to see that pop-up. Every time you change, it has to get synchronized. Then what you can do, you can change this to automatic. Okay, it means every time you make a change, it has to sync with those changes back to the job information. Now let's try to make the changes once again. Sorry, यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ और मैं 31st को एक नया चेंज करना चाहता हूँ.
I want to change the job title to senior associate professional. यहाँ पे job title यहाँ पे है. ओके, एसोसिएट प्रोफेशनल को मैं सीनियर एसोसिएट प्रोफेशनल करना चाहता हूँ. सेव. ओके, अभी देखो वो पॉपअप मैसेज नहीं आया है. ओके, ये यहाँ पे जॉब टाइटल देखेंगे तो ये चेंज हो गया है. दिस इज़ द प्रीवियस वैल्यू. नाउ लेट्स सी यहाँ पे वो चेंजेस आ गए कि नहीं. ये देखो 31 मार्च को जॉब टाइटल सीनियर एसोसिएट प्रोफेशनल हो गया. तो as soon as you make a change on the position, the same changes got synced to the job information. This is the use of a position to job synchronization or position to job propagation rule. Okay, so position to job synchronization rule will be placed at two places. One is at the position management synchronization tab level, and the other one is at the मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन फील्ड लेवल ऑन चेंज पे. जब भी पोजीशन चेंज होगा इमीडिएटली ये रूल ट्रिगर होगा और जो भी पोजीशन पे वैल्यूज़ हैं एग्जैक्ट सेम वैल्यूज सब पुल करके यहाँ पे जॉब इन्फॉर्मेशन में अपडेट कर देगी. अगर आपको लग रहा है कि कुछ फील्ड्स अपडेट नहीं हो रहा है ठीक से, देन यू हैव टू गो एंड चेक व्हाट आर ऑल द डिफरेंट फील्ड्स दैट यू हैव कॉन्फ़िगर्ड. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड्स है. ओके, एनीथिंग अदर दैन 10 फील्ड्स if they are maintained on the position will not get synced to the job information because they are not part of the business rule. अगर आपको कोई और फील्ड को सिंक करना है, लेट्स से आपको कौन सा फील्ड है, जॉब लेवल बोल के एक फील्ड है यहाँ पे. लेट्स से यहाँ पे जॉब लेवल का फील्ड सिंक नहीं हो रहा है, तो यू कैन चेक योर बिजनेस रूल इफ़ जॉब लेवल इज़ पार्ट ऑफ योर बिजनेस रूल. यहाँ पे देखो जॉब लेवल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड दैट फील्ड हियर बाय क्लिकिंग ऑन ऐड एक्सप्रेशन. नाउ देन सेट जॉब इंफॉर्मेशन डॉट जॉब लेवल. जॉब लेवल है क्या देखेंगे, नहीं जॉब लेवल का फील्ड नहीं है, तो इसीलिए हम वो फील्ड को सिंक नहीं कर पा रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू इंक्लूड दैट फील्ड, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू कम टू मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन एंड यू कैन एनेबल दैट पर्टिकुलर फील्ड. पहले वो फील्ड को एनेबल कर देंगे. लेट्स सी इफ वी हैव अ स्टैंडर्ड फील्ड. नहीं है जॉब से स्टार्ट होने वाले, तो वी कैन क्रिएट सेलेक्टर कस्टम स्ट्रिंग डी, और यहाँ पे मैं जॉब लेवल बोल के एक फील्ड दे दूँगा. ये कहाँ पे दिखना चाहिए, जॉब इंफॉर्मेशन सेक्शन में दिखना है. आई एम एनेबलिंग दिस फील्ड एंड आई विल सेव दिस. सेव हो गया. अभी मैंने जॉब लेवल बोल के एक नया फील्ड बना दिया. तो लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन फाइंड दैट फील्ड नाउ. लेट मी रिफ्रेश दिस.
direction, then add expression, set जॉब लेवल। ये देखो मेरा फील्ड अभी आ गया है यहाँ पे। टू बी इक्वल टू व्हाट शुड दिस जॉब लेवल फील्ड बी इक्वल टू? इट विल बी इक्वल टू पोजीशन डॉट जॉब लेवल। बट कौन सा पोजीशन? जो भी आप जॉब इंफॉर्मेशन पे मेंटेन करोगे उसका वो पोजीशन का मुझे जॉब लेवल चाहिए। तो पोजीशन डॉट जॉब लेवल, एक्सटर्नल कोड, सेव। ओके, सो वॉट एवर इज ऑन द पोजीशन, वो पोजीशन पे जो भी जॉब लेवल पे फील्ड पे वैल्यू है वही फील्ड हमें जॉब इंफॉर्मेशन डॉट जॉब लेवल पे सिंक होना चाहिए। ऐसे आप एडिशनल फील्ड्स भी सिंक कर सकते हो। So this is about position to job sync rule. So there is one important topic which I think I forgot to explain. So I was talking about, I remember starting this discussion, but हमने I think खत्म नहीं किया है। This is about employee central to employee profile. So I was showing you this part, employee central, employee profile. यहाँ पे भी कुछ कुछ fields रहेंगे, like background elements, standard, user info. तो background elements में आपका certificates, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एजुकेशन रिलेटेड, आपने कुछ कोर्सेज किया है, नहीं तो आपको क्या क्या लैंग्वेजेस पता है, वो सब डिटेल्स बैकग्राउंड एलिमेंट्स में हम मेंटेन करते हैं। ओके, नॉट इन दी एम्प्लॉय सेंट्रल। ये बैकग्राउंड एलिमेंट्स एक्चुअली विल बी एट द बॉटम ऑफ द एम्प्लॉय प्रोफाइल, कंप्लीटली नीचे टैलेंट इन्फॉर्मेशन बोल के आएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स वो मेंटेन करते हैं हम लोग। जैसे हम नौकरी में मेंटेन करते हैं ना, व्हाट ऑल लैंग्वेजेस यू नो, व्हाट सर्टिफिकेशंस हैव यू कंप्लीटेड, व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट ऑल कोर्सेज यू हैव कंप्लीटेड, वो सब डिटेल्स, ऑल दिस विल बी योर पार्ट ऑफ योर बैकग्राउंड एलिमेंट्स। ओके, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एम्प्लॉय सेंट्रल एंड एम्प्लॉय प्रोफाइल। इसको शॉर्टकट में मोस्टली ईपी बोल के रेफर करते हैं। सो लेट्स से वी हैव लॉट ऑफ फील्ड्स लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैनेजर, कंपनी आईडी, डिपार्टमेंट, लोकेशन, what else, job level, job grade, job title। लेट्स से ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं कहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टलेट्स ऑन दी एम्प्लॉय सेंट्रल। नाउ देर आर अदर मॉड्यूल्स लाइक LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, देन यू हैव पर्सनल डेवलपमेंट, PD बोलते हैं, और PMGM ऑल्सो, PMGM। देन वी हैव सक्सेशन डेटा, सक्सेशन मैनेजमेंट, देन वी हैव कॉम्पनसेशन। तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय ने क्या क्या ट्रेनिंग्स किया है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस कर दिया है, वो सब आपका LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रैक होगा। ईयरली अप्रेजल, इसका रेटिंग कैसा है, हाउ डिड ही परफॉर्म लास्ट ईयर, हाउ इज ही परफॉर्मिंग दिस ईयर, वो सब आपका PMGM में रहेगा। सक्सेशन बोले तो इनकेस इफ देर आर एनी सीनियर एम्प्लॉय, सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में है, एंड एनी टाइम द पीपल कैन लीव द कंपनी, they because of several reasons, because of personal reasons, or can be because of some better opportunity. So in case if an employee, a senior employee leaves an organization, and in case if you are looking for a successor, बोले तो उसका replacement,
तो वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर देयर इज समवन अवेलेबल विद इन द कंपनी, तो उसके लिए हमें सक्सेशन मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। देन कंपनसेशन, आपके अप्रेजल पे डिपेंडेंट होता है कि आपका कंपनसेशन कितना देना चाहिए आपको हाइक। आपका सैलरी टीम में कंपेयर करेंगे तो एवरेज सैलरी से ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से आपका हाइक वो सब कैलकुलेशन होगा। ऑल दिस विल बी कैलकुलेटेड बाई फेचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय सेंट्रल। ओके, जितने भी डिटेल्स हम एम्प्लॉय सेंट्रल पे मेंटेन करते हैं उसमें से जो भी डिटेल्स ये मॉड्यूल्स को चाहिए वो मॉड्यूल वहाँ से पिक करेगा एम्प्लॉय सेंट्रल से। बट एम्प्लॉय सेंट्रल में वील हैव अराउंड लाइक 15-20 डिफरेंट पोर्टलेट्स। ईच पोर्टलेट ऑन एन एवरेज विल हैव अराउंड 10 to 15 फील्ड्स, तो नियरली कुछ 300 to 400 फील्ड्स रहेंगे एम्प्लॉय सेंट्रल में। बट एक LMS काम करने के लिए या PMGM काम करने के लिए या सक्सेशन को अगर कुछ डेटा पास करना है तो इट विल नॉट रिक्वायर ऑल 300 फील्ड्स विच आर कॉन्फ़िगर्ड इन एम्प्लॉय सेंट्रल। LMS के लिए, लर्निंग मैनेजमेंट के लिए, फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई एन एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉय ID चाहिए और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। उसके बाद उसका मैनेजर कौन है, क्योंकि अगर वो सर्टिफिकेशन कुछ ख़त्म नहीं किया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इट हैज़ टू गेट एस्केलेटेड, तो एस्केलेशन किसको जाना चाहिए, वो मैनेजर को जानना चाहिए। उसके लिए उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका लेवल क्या है। दीज आर द ओनली थिंग्स विच आई वांट, क्योंकि बेस्ड ऑन दीज थिंग्स उसका लेवल क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, ये दोनों चीज़ों की हिसाब से मैं कुछ ट्रेनिंग्स असाइन करूँगा। इफ़ द एम्प्लॉय इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से उसको इंजीनियरिंग वाला रिलेटेड ट्रेनिंग्स ही असाइन करूँगा। उसको सॉफ्टवेयर वाला जावा और .NET सिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है। आई हैव टू टीच देम और गिव देम ट्रेनिंग रिलेटेड टू CAD, ओके, और मे बी सम इंजीनियरिंग रिलेटेड, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का रिलेटेड ट्रेनिंग्स। लेट्स से इफ द एम्प्लॉय इज़ फ्रॉम अ टेक्निकल फ्रॉम अ कंप्यूटर बैकग्राउंड, बोले तो सॉफ्टवेयर साइड, तो उसको मैं जावा .NET ऐसा चीज़ों का ट्रेनिंग्स असाइन करूँगा। सो बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट नेम आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू डू, बेस्ड ऑन दैट मैं उसका ट्रेनिंग्स उसको असाइन करूँगा। सिमिलरली PMGM, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गोल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय ID क्या है, कब ज्वाइन हुआ है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, मैनेजर क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, ऐसे इसको शायद कुछ और डिटेल्स की ज़रूरत है। तो अगेन PMGM विल नॉट need all the 300 different fields which are configured in Employee Central. It will probably need around 10 to 12 different fields. So every time you change some values in these fields in the Employee Central, these values have to be passed to other modules. So to pass these values from here to here, we cannot send all of the 300 fields. So what we have done is, we have something called as employee profile, which is like a bridge between Employee Central and the other modules. This information, whenever you change something in the Employee Central, the same value gets updated to employee profile also. Let's say मैंने यहाँ पे राम बोल के डाल दिया, तो यहाँ पे भी राम बोल के आ जाएगा। Same thing will be immediately passed on to LMS also. Okay, so यहाँ से directly नहीं जाएगा, यहाँ से जितने भी fields इनको चाहिए, let's say we have some more fields here. We have time zone, pay grade, pay scale, type, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है एम्प्लॉय सेंट्रल में। ओके, ऑल दीज फील्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द अदर मॉड्यूल्स। बेस्ड ऑन व्हाट दीज मॉड्यूल्स नीड, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स से कंपनसेशन का रिलेटेड ये फील्ड्स चाहिए मुझे,
तो मैं इतने सारे फील्ड्स पूरे कंपनसेशन के हैं, बट मुझे ये 2 ही फील्ड्स चाहिए, तो मैं ये एम्प्लॉय प्रोफाइल में ऐड कर लूँगा। तब क्या होगा, मैं ये एम्प्लॉय को कुछ फील्ड्स मेंटेन करूँगा, वही फील्ड्स जाके यहाँ पे भी सिंक हो जाएगा। ऐसे मैं कुछ वैल्यूज़ मेंटेन कर रहा हूँ एम्प्लॉय सेंट्रल पे। ये पर्सनल इन्फॉर्म का है, ये सब पूरा जॉब इन्फॉर्मेशन का है, ये सब पूरा पेरोल इन्फॉर्मेशन और कॉम्पनसेशन इन्फॉर्मेशन का है। ऐसे अलग अलग पोर्टलेट्स में जो भी डेटा है वो जाके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। डिपार्टमेंट इज IT, लेवल इज 12, एक्सपीरियंस लेट्स से इसका 10 इयर्स है, पे रेंजेस सम कोड, पेरोल एरिया इज 12। ऐसे जो भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ ये मैं एम्प्लॉय प्रोफाइल पे डायरेक्टली नहीं मेंटेन करूँगा। जो भी मैं एम्प्लॉय से सेंट्रल पे मेंटेन करूँगा वही फील्ड्स जाके एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाके बैठेगा, और ये फील्ड्स को ये अलग अलग मॉड्यूल्स रीड करेंगे, और उसके हिसाब से इसमें पूरा कैलकुलेशंस या लॉजिक जो भी बिल्ड होगा वो सब रहेगा। तो employee profile will act as a bridge between employee central and other modules. So how do you sync fields between employee central and employee profile? So we have something concept called as HRIS sync mapping. Okay, this is the concept, HRIS sync mapping. Using this functionality we sync the fields from employee central to एम्प्लॉई प्रोफाइल। सो लेट्स से अगर मुझे फर्स्ट नेम एम्प्लॉय सेंट्रल से फर्स्ट नेम इन एम्प्लॉय प्रोफाइल को मैप करना है, और लेट्स से मुझे जॉब टाइटल एम्प्लॉय सेंट्रल से जॉब टाइटल एम्प्लॉय प्रोफाइल को मैप करना है, तो हाउ डू आई डू इट? व्हाट यू हैव टू डू इज you can either do it using data model, which is succession data model, or you can do it via manage business configuration also. How to do it? First you have to find out which fields you want to sync. Job information पे job title sync करना है मुझे, कि कहाँ पे sync करना है मुझे? employee profile पे job title field पे sync करना है. Now let's see if these two fields are existing. तो जॉब इन्फॉर्मेशन पे जॉब टाइटल है क्या देखेंगे? ओके, जॉब टाइटल है एंड दिस फील्ड इज एनेबल्ड, ठीक है। जॉब इन्फॉर्मेशन, ये जॉब इन्फो पोर्टलेट पे मुझे मिल गया है। नाउ एम्प्लॉय प्रोफाइल में भी मुझे सिमिलर फील्ड चाहिए सो दैट द सेम डिटेल्स कैन बी सिंक्ड बैक टू एम्प्लॉय प्रोफाइल। टू सिंक these details I have to now find out if this field is existing in the employee profile also. तो मुझे उसके लिए एम्प्लॉय प्रोफाइल पे क्लिक करके स्टैंडर्ड में जाना है। ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन स्टैंडर्ड यू विल फाइंड लॉट ऑफ फील्ड्स। यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा फील्ड्स दिख रहे हैं। नाउ लुक फॉर जॉब टाइटल, ये देखो मुझे जॉब टाइटल मिल गया है। ओके, इसका आइडेंटिफायर क्या है? जॉब टाइटल। कॉपी दिस फ्रॉम द एम्प्लॉय प्रोफाइल। ओके, एम्प्लॉय प्रोफाइल में स्टैंडर्ड में जो भी वो कोड है जॉब टाइटल का, ये कॉपी कर लो। ओके, एंड देन यू हैव टू गो टू जॉब इंफॉर्मेशन। ओके, because we want to copy whatever is there in the job title of the job information to job title of the employee profile. Employee profile में आपको पोर्टलेट जैसा नहीं दिखेगा, पूरा एक ही सेट जैसा ऊपर से नीचे तक वैल्यूज दिखेंगे। I'll show you that. So जॉब इन्फॉर्मेशन में जो जॉब टाइटल है उसको मैं जॉब टाइटल इन द एम्प्लॉय प्रोफाइल को मैप करना चाहता हूँ। तो फॉर दैट आई हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द जॉब टाइटल कोड फ्रॉम द एम्प्लॉय प्रोफाइल, उसको कॉपी करके फिर
जॉब इन्फॉर्मेशन में जो जॉब टाइटल फील्ड है उसमें हम जाके लेट्स गो टू जॉब टाइटल. ये देखो फील्ड है, ये जॉब इन्फॉर्मेशन का पोर्टलेट है एम्प्लॉय सेंट्रल में, और इसमें जॉब टाइटल है. इसमें डिटेल्स में जाना है हमें. डिटेल्स में जाके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये देखो HRIS सिंक मैपिंग स्टैंडर्ड फील्ड बोल के कुछ दिख रहा है. नाउ हियर यू हैव टू सेलेक्ट जॉब टाइटल. यहाँ पे नहीं दिख रहा है. इट मीन्स आई थिंक दिस फील्ड इज नॉट enabled. Let's try to enable that particular field. Let's see if it is enabled or not. मैं फिर से एम्प्लॉय प्रोफाइल में जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ. स्टैंडर्ड में मुझे जॉब टाइटल का फील्ड चाहिए. दिस वन. इसका नाम है टाइटल है. ओके, इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा जॉब टाइटल बोल के टू क्लियर एनी कंफ्यूजन. ओके, दिस इज enabled. आई एम सेविंग इट. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू मैप जॉब टाइटल फ्रॉम जॉब इंफॉर्मेशन टू मिल गया. ये मेरा मैपिंग हो गया है. इट मीन्स आई एम मैपिंग द जॉब टाइटल फील्ड फ्रॉम जॉब इंफॉर्मेशन टू जॉब टाइटल फील्ड इन द एम्प्लॉय प्रोफाइल. नाउ जस्ट क्लिक ऑन फिनिश्ड एंड देन क्लिक ऑन सेव. एक्सक्यूज मी. ओके, सो यहाँ पे मैं ये फील्ड का परमिशन सेट कर रहा हूँ. क्या सेट कर रहा हूँ यहाँ पे? राइट परमिशन चाहिए. स्टार बोल तो सबको यहाँ पे राइट परमिशन चाहिए. ओके, सो अगर मुझे किसी को भी एडिट का परमिशन नहीं देना है तो आई कैन गिव रीड टू एवरीवन. स्टार बोले तो एवरीवन. Now I am clicking on write so that everyone can update this particular field. Okay, so ये configuration हो गया है. Let's check that particular job title. Okay, यहाँ पे है. इसमें डिटेल्स में जाएंगे तो नीचे HRIS sync mapping standard field बोल के है. So we have mapped this particular field with a field in employee profile. कहाँ पे है वो? employee profile में standard field बोल के यहाँ पे है ना, उसमें वो सेक्शन में हम job title field से sync किया है. Now let's see if we have this field on the employee profile. ओके, एम्प्लॉय प्रोफाइल में ऐसे दिखेगा ऊपर से नीचे तक. ओके, यू डोंट हैव अ सेपरेट पोर्टलेट फॉर ईच एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स सी. When we change the job title, if this is getting synced or not. उसके लिए हमें पहले जॉब इन्फॉर्मेशन में जाके कुछ चेंजेस करना है. We'll take a different employee.
इसका जॉब टाइटल क्या है देखेंगे. जॉब टाइटल असेंबली वर्कर है. ओके, ये जॉब इन्फॉर्मेशन में जॉब टाइटल का फील्ड है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द टैलेंट इन्फॉर्मेशन. टैलेंट इन्फॉर्मेशन इज द एम्प्लॉय प्रोफाइल. यहाँ पे आके देखेंगे तो दिस इज टाइटल, दिस इज असेंबली वर्कर, सेम थिंग. नाउ we'll try to make some change in the employee's job information job title. इसका जॉब टाइटल में मैं सीनियर असेंबली वर्कर बोल के मैंने चेंज कर दिया. once this is saved, the changes have to get synced to the employee profile job title also. So that is my expectation. यहाँ पे सेव हो गया. क्या ये सेव नहीं हो रहा? Okay. जॉब टाइटल ये देखो सीनियर असेंबली वर्कर बोल के जॉब इन्फॉर्मेशन पे सेव हो गया. नाउ लेट्स चेक दैट इन एम्प्लॉय प्रोफाइल. एम्प्लॉय प्रोफाइल के लिए टैलेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है. ये देखो सीनियर असेंबली वर्कर बोल के इमीडिएटली सिंक हो गया वहाँ से. इन दिस वे यू कैन सिंक द वॉट एवर चेंजेस दैट यू हैव मेड इन एम्प्लॉय सेंट्रल टू एम्प्लॉय प्रोफाइल. सो हम जब पोजीशन पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो जॉब इन्फॉर्मेशन में आके सिंक हो रहा है. हाउ डिड इट हैपन? दैट हैपेंड यूजिंग पोजीशन टू जॉब सिंक रूल. बट यहाँ पे हम फील्ड टू फील्ड मैपिंग तो किया है, बट वो सिंक होने के लिए जस्ट लाइक वी हैव सेट अप अ जॉब इन प्रोविजनिंग फॉर अलर्ट रूल्स, सिमिलरली इवन फॉर HRIS sync mapping we have to set up a job. So we have logged into provisioning system. Let's go into the company. Then we'll go to manage scheduled jobs. Click on this one and then यहाँ पे job type में HRIS बोल के search करो. Okay, HRIS sync, this is the job. When you click on this one, it will give you the sync jobs which are running. Okay, you don't have to keep these things if you are not using it. We have one job which is running. Okay, HRIS sync. इस पर क्लिक करोगे तो हमने लास्ट टाइम अलर्ट का रूल ट्रिगर करने के लिए, अलर्ट नोटिफिकेशंस ट्रिगर करने के लिए जैसा हमने रूल ये जॉब सेटअप किया था ना, सेम वे यू हैव टू गिव अ नेम, गिव द ओनर नेम, उसके बाद जॉब टाइप. कौन सा जॉब है? HRIS सिंक का जॉब. वो ये ड्रॉप डाउन से मैं सेलेक्ट करूँगा. और व्हेन डिड इट लास्ट रन, उसके बाद क्या क्या पोर्टलेट सिंक करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस, पूरे के पूरे पोर्टलेट्स मुझे सिंक करना है. जितने भी फील्ड्स का मैपिंग है एम्प्लॉय सेंट्रल से एम्प्लॉय प्रोफाइल को, वो सब फील्ड्स मुझे मैप करना है. तो पूरे के पूरे पोर्टलेट्स मैं सेलेक्ट करूँगा. अगर मुझे सिर्फ जॉब इन्फॉर्मेशन का फील्ड्स ही सिंक करना है तो देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओनली जॉब इन्फॉर्मेशन. इफ आई वांट टू सिंक ओनली contact information, then I'll be selecting only one portlet. So whenever this job sync runs, only the portlet that you have selected will sync to the employee profile. Now because we have selected all the portlets here, all the values or all the fields that are mapped from employee central to employee profile will get synced automatically. And here we can set up the occurrence. रिकरिंग है, डेली है और एवरी मिनट ये रन होना चाहिए. तो ऐसे अगर हम सेट कर देंगे तो वेन एवर यू मेक सम चेंजेस ऑन द एम्प्लॉय सेंट्रल कोई भी पोर्टलेट पे, और उसके फील्ड के पीछे
अगर आप कोई भी एम्प्लॉय प्रोफाइल का फील्ड को मैप करोगे तो दैट फील्ड विल गेट ऑटोमेटिकली सिंक्ड टू द एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो जब ये फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, these modules will read these fields। किसी का अगर लेवल 12 से प्रमोट होके 13 हो गया है, ओके, ऑटोमेटिकली सिस्टम विल पुश दिस वैल्यू टू LMS एंड देन सिस्टम विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रमोशन दैट हैज हैपेंड। तो इसको नेक्स्ट लेवल के हिसाब से कुछ ट्रेनिंग्स पुश करो। ओके, नेक्स्ट PMGM, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गोल्स मैनेजमेंट। इसका गोल्स 12th लेवल में अलग रहेंगे, 13 लेवल में अलग रहेगा। कंपनी विल एक्सपेक्ट लिटिल मोर फ्रॉम लेवल 13। तो कुछ नया गोल्स इसको असाइन कर देंगे कि मैनेजमेंट में यू हैव टू डू दिस मच, योर टारगेट इज दिस मच, यू हैव टू ब्रिंग इन एटलीस्ट 10 डिफरेंट क्लाइंट्स। ऐसे पूरा गोल सेट हो जाएंगे विच मे नॉट बी पार्ट ऑफ 12 लेवल, बट 13 आते ही उसको कुछ नया लेवल्स आ जाएंगे। सक्सेशन, अगर 12 लेवल में सक्सेशन का बंदा कोई बंदा, लेट्स से राम का सक्सेसर जेम्स है, नाउ राम इज एट 12 लेवल एंड ही हैज़ मूव टू 13 लेवल, तो ही गॉट प्रमोटेड। तो प्रमोट होने के बाद उसका सक्सेसर भी से चेंज हो जाना चाहिए, ही स्टिल कैन नॉट बी जेम्स, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट लेवल के हिसाब से उसको कंपनी या सिस्टम को एक सक्सेसर चाहिए। तो based on that the system will now pick up a new successor, so succession management will read this level and it will pick up another employee as a successor for Ram Kumar। compensation, अगर इसका let's say 20 lakhs है, 21 lakhs है 13 लेवल पे, तो इसके हिसाब से अगर इसको हाइक देना है तो 21 lakhs ऑलरेडी है, बट टीम का एवरेज 22 lakhs है, तो इसको मैक्सिमम हाइक 1 लाख ही दे सकते हैं। वैसे कंपनसेशन मॉड्यूल भी अपना वैल्यूज़ पूरा चेंज कर लेगा। तो एम्प्लॉय प्रोफाइल इवन दो डज नॉट हैव ऑल द फील्ड्स लाइक एम्प्लॉय सेंट्रल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर मॉड्यूल्स टू वर्क सीमलेसली। जो भी डिटेल्स हम एम्प्लॉय सेंट्रल पे चेंज करोगे वो जाके एम्प्लॉय प्रोफाइल पे बैठेगा। एम्प्लॉय प्रोफाइल का फील्ड्स पूरा अदर मॉड्यूल्स रीड करके उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, डे टू डे डिसीजंस, डे टू डे असाइनमेंट्स सब चेंज होगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय सेंट्रल टू एम्प्लॉय प्रोफाइल विच इज HRIS सिंक मैपिंग। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।